Good morning. So today we are going to start addition of vectors. We had already completed exercise 10.1. Now addition of vectors. First one is the triangle rule. And you know very well how to represent a vector. Suppose this is vector E. Okay. So this is what? Vector A, but this particular point is known as head. And this is tail. You know very well? Okay. So we are just going to see triangle rule. Suppose this you already know. We had already explained yesterday y, z, whatever it is. Suppose point P, A, B, C. Okay, then this OP. This is vector OP. Okay, and vector OP is nothing but AI cap plus BJ cap plus CK cap. Vector OP is AI cap, BJ cap and CK cap. ओके बेटा अभी नोट ना करो, आप हम देंगे टाइम नोट करने का, ठीक है ना? वहां से दिख रहा है ना? सो दिस इज ओपी. ओके, एंड ओपी इज नथिंग बट पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट पी. पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी. ऑलवेज व्हेनेवर वी टेल अबाउट द पोजीशन वेक्टर, दैट मीन्स ओपी. सपोज पोजीशन वेक्टर ऑफ ए ओ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी ओ बी. Okay, and if we write this as a vector OP and supposed to be this is D. So OP is nothing but, this is nothing but vector T. These are the notation only. Clear? Now we are going to see triangle. So suppose we have given a vector supposed to be, this is A, this is supposed to be B, this is A and this is C. Okay? Clear? A, B, C. A, B and C. A, B, सी. एक चीज और थोड़ा सा ध्यान देना, इसमें हम नोटेशन थोड़ा सा ये चीज अलग करेंगे. सी के सामने सी होना चाहिए, सी. ए के सामने ए बी सी. ओके, ए बी. सो व्हाट इज ट्रायंगल रूल? यू नो वेरी वेल. ट्रायंगल रूल इज नथिंग बट बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू नॉट ए बी, बी ए. Okay, this is equals to BA. So BC plus CA is equals to BA. This, if we add BC, CA, then this must be BA. Okay? If we take ABC, then no problem. After calculating this, according to vector rule, this is ऑलरेडी ए बी प्लस बी सी इक्वल टू सी ए, जो आप पढ़ते हैं. हमने क्या किया, एकदम अलग किया, क्योंकि आपको रूल समझाना है, ठीक है ना? इन्हें रटा चीज की एकदम याद है तो वही चीज बताना. आई बात समझ में? आप इसको सॉल्व करो. ए बी प्लस बी सी पढ़ते हो ना, इज इक्वल टू ए सी पढ़ते हो. हाँ, तो सी दिस वन. इफ यू राइट बी सी एंड दिस इज दैट साइड माइनस बी ए इज इक्वल टू माइनस सी ए. According to the vector rule, negative of a vector. Yesterday I have explained negative of the vector. If AB is a vector, the negative of that vector is minus BA. अभी जब AB और BA की पोजीशन चेंज होती है तो क्या होता है? नेगेटिव आ जाता है. ओके, सो दिस इज BC and plus AB. अब आए समझ में? इज इक्वल टू प्लस AC.
क्या वही रूल नहीं हुआ? ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू व्हाट? ए सी। हम आपको ये रूल समझाना चाहते हैं। अब आप बनाइए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के हिसाब से क्या कर देंगे? हम ऐसे ले लिए, ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। दिस इज द ट्रायंगल रूल। किसी भी तरह करोगे अगर ट्रायंगल रूल सही तो बाद में रिजल्ट वही आना है। सो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। क्लियर? Now note it down, then after we see. Now parallelogram rule, ठीक है? Before that, before studying parallelogram rule, then rule of addition. ठीक है बेटा? If we take in triangle rule, if we take first point this O A B. Listen carefully. This is also a very important thing. Okay. Now ABC. I am not take ABC. I am going to take O A B. O is the origin. ठीक है? तो ये हम आपको बता रहे हैं पोजीशन वेक्टर फाइंड करने का तरीका. ठीक है ना? If you apply triangle rule, OA plus AB is equal to OB. Am I right? Triangle rule. OA plus AB is equal to OB. So AB is what? OB minus, और ये आपको फिजिक्स में खूब पढ़ाया गया होगा. If you want to find any vector A, B, P, Q, A, C, whatever you want, this is nothing but position vector of B minus position vector of A. That means AB. Position vector of last point minus position vector of first point. PQ, OQ minus OP. AC, OC minus AC. OA. Whatever you want. RQ, OQ minus OR. PS, OS minus OP. हमेशा सही है, कोई दिक्कत नहीं. Clear? Now, what is the parallelogram rule? If you see, these are the sides of parallelogram A and B. Okay? Then resultant this is the resultant vector A plus B. How? This is A. You know clearly? This is B, then this also B. So which one is A plus B? A plus B. This resultant is A plus B. B. इसका डायरेक्शन यही है ना? B plus A. B plus A. Okay? And A plus B is equal to B plus A. Vector addition always follow commutative law, and that's why this is A plus B and this is B plus A. Both are equal. Resultant are equal. Clear? A plus B is equals to B plus A. Understood? Yes. Now note it down. This is the parallelogram rule. Multiplication of a vector by a scalar. This is also important one. Okay, if you multiply a scalar in a vector, then what is the result? Multiplication of a vector, multiplication of a vector by scalar. Multiplication of a vector by scalar. Suppose K is the scalar and suppose A is the vector.
Okay? Then if you multiply, then this is what? K into E. That means K times of the vector A. Simple. Okay? K times of the vector A. Suppose this is E. Then just double of this 2A. वेक्टर डबल हो गया, दैट मींस इसका मैग्नीट्यूड भी डबल हो गया, ठीक है ना, 3 टाइम्स से 4 टाइम्स से व्हाटएवर. ओके, now write down component of a vector. Component of a vector. Component of a vector. ठीक है ना. तो देखिए बेटा यहाँ पे आपको पता है पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट क्या होता है. This is your coordinate axis, 3-dimensional. Okay. Suppose this is a point P, X, Y, Z. Then you know very well this is the OP. क्यों ना? XI cap plus YJ cap and plus ZK. This is the vector OP. This is also called position vector of P. And you know very well. This is always represented by R. कहीं पे भी एक्स आई वाई कैप जेड कैप मिलेगा, आगे के लिए बताया, बहुत जहां भी पढ़ोगे फिजिक्स मैथ कहीं भी ओपी जो है वो वेक्टर आर ही है. ओके, क्लियर. एंड दिस इज नथिंग बट एक्स आई कैप, वाई जे कैप एंड जेड कैप. ऑलवेज रिमेंबर. सो ओपी इज इक्वल्स टू आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस ZK cap. Mod of OP, that means magnitude of OP. This is magnitude of R. This is nothing but R. And this R is nothing but under root x square plus y square plus z square. जो भी हमने कल बताया. क्लियर. Mod of OP क्या होगा? Under root x square plus y square plus z square. You know very well this because in physics you have already studied about this. क्लियर है. और हमने कल बताया भी था कैसे ये आता है. क्लियर. नाउ सी हियर वी टॉक अबाउट द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर. ओके, सो अ वेक्टर हैज 2 कंपोनेंट्स. कोई भी वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है तो वेक्टर 1. इस वेक्टर के कितने कंपोनेंट हैं? देयर आर 2 कंपोनेंट्स. फर्स्ट वन इज द स्केलर कंपोनेंट, सेकंड वन इज द वेक्टर. यू नो अबाउट द आई जे के क्या? This is, that is in the direction of x-axis. I cap is the unit vector. I cap is the unit vector in the direction of positive x-axis. Negative में होगा तो माइनस आई. ये सब जानते हो ना. J cap unit vector in the direction of in the K cap पॉजिटिव ऑफ. ठीक है. एंड ऑल्सो यू नो आई कैप, जे कैप एंड के कैप, देयर मैग्नीट्यूड्स आर 1. इफ यू टेक मैग्नीट्यूड दिस इज 1 एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच. दैट मीन्स दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. म्यूचुअली परपेंडिकुलर दैट मीन्स परपेंडिकुलर टू ईच वन. आई कैप, जे कैप, दे आर परपेंडिकुलर. जे कैप, के कैप, दे आर परपेंडिकुलर. ओके. एंड नाउ वी टॉक अबाउट द कंपोनेंट. So there are x, y, z are scalar component. क्या ये scalar component? Always remember. ठीक है ना. छोटी सी चीज है, इसको लोग ध्यान नहीं देते बेटा और क्वेश्चन इस पे से आ जाता है. Scalar component कौन है? x, y and z. But x I cap, y j cap and z K cap are vector component. Vector component. Okay.
किसके स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट है? ओपी के. ओपी इज अ वेक्टर. देन आई कैप जे एक्स वाई एंड जेड आर स्केलर कंपोनेंट. एक्स आई कैप वाई जे कैप एंड जेड के कैप आर वेक्टर कंपोनेंट. क्लियर? सपोज वी हैव टू राइट हियर अ वेक्टर AB supposed to be AI cap plus BJ cap plus CK cap. Then A, B, C, A comma B comma C is a scalar component and AI cap plus BJ cap plus CK cap is the vector component of this particular vector. And yesterday I had told A, B, C, that means that the scalar component is also known as डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर. आगे हम 3D में फिर से पढ़ाएंगे या फिर कल का वीडियो अपलोड है वो आप देखें. क्लियर? एक लेक्चर हुआ है, ठीक है ना. अब तो ये भी प्रॉब्लम नहीं, आप नहीं आए थे, वो वीडियो अपलोड है, आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा. दोनों आपस में कोरिलेट कर लीजिए. ठीक है. सो दिस इज द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट. क्लियर बेटा? ओके. अब यहाँ पे कुछ चीजें और हैं जो बुक में दी हुई है, थोड़ा सा आप देख लेंगे, सबके पास बुक है. अगर ए और बी दो वेक्टर्स हैं, ठीक है ना, ए को A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप, B इज इक्वल टू B1 आई कैप A2 B2 C2 है ना. देन A प्लस B इज नथिंग बट A1 प्लस B1 आई कैप है ना. वेक्टर्स के जो स्केलर कंपोनेंट है वो स्केलर कंपोनेंट में ऐड हो जाएंगे. ठीक है ना. वेक्टर वेक्टर में ऐड नहीं होंगे, उसके साथ वेक्टर कंपोनेंट आ जाएगा. जैसे A प्लस B है ना, एक वेक्टर है और B है. एक A इज नथिंग बट A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप एंड B इज नथिंग बट A2 आई कैप B2 जे कैप एंड C2 के कैप. देन A प्लस B इज नथिंग बट A1 प्लस B1 एंड देन आई कैप A2 प्लस B2 जे कैप A3 प्लस B3 के कैप. क्लियर? एंड यू नो again for the vector A plus B, A1 plus B1 comma A2 plus B2 comma A3 plus B3, these are the scalar component of the vector. And again A1 plus B1 I cap A2 plus B2 J cap comma A3 plus B3 K cap, these are the vector component of the vector A plus B. Clear? Okay. So similarly A minus B, okay, and if vector A and B are equal, these two vectors are equal, then scalar component must be equal to the scalar component. So A1 equals to A2, B1 is equal to C1 is equal to. आ रही बात समझ? बेटा एक नंबर क्वेश्चन 100% पूछता हूँ, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आगे काम आएंगे. दो वेक्टर इक्वल हैं, दे देगा, एक को दे देगा एक्स आई कैप प्लस वाई माइनस 2 जे कैप प्लस जेड माइनस 4 के कैप, है ना. एंड देन दिस मस्ट बी इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड? तो जो आपने एक्स आई कैप किया है तो इधर एक्स इज इक्वल टू 1, वाई माइनस 2 इज इक्वल टू समथिंग, जेड माइनस 3 इज इक्वल टू समथिंग. जो भाई स्केलर स्केलर के इक्वल है ना, उसमें A1 इक्वल टू A2 B1 इक्वलिटी पे क्वेश्चन है. क्लियर है? ओके. सिमिलरली some more results are there. If you multiply a vector by a scalar, you know very well what is the result. That time k times the vector. Okay. Yes. So in this manner you can do this particular exercise. Maybe exercise number 10.2. अभी इसको स्टार्ट करने में टाइम लगेगा बेटा, क्योंकि और भी बहुत सारी चीजें पढ़ानी है, लेकिन कुछ एग्जांपल्स हैं उसको करिएगा और जो आपको इस पे समझ में आए वो क्वेश्चन करने की कोशिश करिएगा. ठीक है ना. बाकी हम आगे देखेंगे. लेकिन एक रिमार्क और है, उसको भी आप देख लें. वन मे ऑब्जर्व इफ लैम्डा वट एवर बी द वैल्यू ऑफ लैम्डा, द वेक्टर लैम्डा इज ऑलवेज द कोलिनियर टू ए. इन फैक्ट दैट मीन्स आपको दो वेक्टर्स को कोलिनियर दिखाना है. ठीक है ना. कल हमने बात की थी इफ टू वेक्टर्स आर कोलिनियर देन A मस्ट बी इक्वल टू m टाइम्स ऑफ B. मतलब A और B वेक्टर अगर कोलिनियर है, ठीक है ना,
तो फर्स्ट वेक्टर उस दूसरे वेक्टर की कुछ न कुछ स्केलर मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। क्लियर है? मतलब आपको एक वेक्टर ए दिया है, दूसरा वेक्टर बी दिया है, आपको इसको कोलिनियर प्रूव करना है, तो ए मस्ट बी इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट टाइम्स बी, है ना? तो उसमें ऐसा दिखेगा कॉमन, कुछ ऐसा लेंगे आप कि वो खुद ए इक्वल टू एम टाइम्स बी आ जाए, ठीक है ना? या फिर दो वेक्टर अगर कोलिनियर है बेटा, ठीक है ना, तो उनके कोफिशिएंट्स का रेशियो, ऑलवेज रिमेंबर टू वेक्टर्स आर कोलिनियर if and only their coefficients, ratio of their coefficients must be equal to some constant। जैसे मान लो a1 i कैप, b1 j कैप, c1 k कैप, ये फर्स्ट वेक्टर है, b a2 b2 c2 है, ये दो कोलिनियर होंगे। तो कब कोलिनियर होंगे? दे आर कोलिनियर if and only if a1 upon b1, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon is equals to something constant। क्लियर है? बहुत सिंपल चीज है ना? कोई डाउट है इसमें? अगर आपको थोड़ा सा और समझना है तो इसको आप ए समथिंग लेमडा टाइम बी लिख लेना, है ना? दोनों को कोलिनियर मतलब ए इज इक्वल टू लेमडा टाइम बी। जब आप कोफिशिएंट्स को कंपेयर करोगे तो a1 इज इक्वल टू लेमडा टाइम a2 नहीं आएगा, b1 इज इक्वल टू लेमडा टाइम b2 नहीं आएगा, a3 इज इक्वल टू लेमडा टाइम b c3 हां c1 इज इक्वल टू लेमडा सॉरी c1 इक्वल टू लेमडा टाइम c2। तो ये जो a1 अपॉन a2 निकालोगे या b1 अपॉन b2 निकालोगे या c1 अपॉन, सब क्या है? लेमडा ही तो आएगा, तो सबकी वैल्यू लेमडा है ना? तो कुल मिला जुला के आपको सीखना क्या है? टू वेक्टर्स आर कोलिनियर इफ एंड ओनली इफ ratios of their coefficient must be equal to a constant। क्लियर है? ओके, थैंक यू।